morning students. Today I am going to explain lesson 4, the bus stop. Precious thought the bus stop was a witch. Precious को लगता था bus stop जो है एक witch, एक डाइन की तरह है. She had nightmares about it. उसको रात को सपने भी आते थे. But it is not what you are thinking. She was not crazy. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसा हमें लग रहा है. वो crazy नहीं थी. You too might have had nightmares about the particular bus stop. आपको भी हो सकता है रात को सपने आते हों किसी particular bus stop के बारे में. But on that Saturday morning, being scared of the bus stop was very inconvenient for Precious. शनिवार की सुबह प्रेशियस के लिए जो वो बस स्टॉप था बहुत इनकन्वीनियंट था डर के मारे. She had to wait by 8 for the bus to town. वो वहाँ शहर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी. She was going to the market. वो मार्केट जा रही थी. Capito, her big brother, was chopping maize out in the fields, so it was up to Precious to do the shopping. Capito जो उसका बड़ा भाई है वो खेतों में जो था मेज काट रहा था, तो अब प्रेशियस के लिए था शॉपिंग करने जाना. She did not mind that. She was proud of being given the responsibility, but she wished with all her heart that the bus would turn up soon. उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं थी और इवन उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, लेकिन वो दिल से चाहती थी कि बस जल्दी से आ जाए. Rice, cassava, beans, said Precious to herself. Those were the things she had to buy at the market. ये तीन चीजें थी जो वो रिपीट कर रही थी जो उसे मार्केट से लेकर आनी थी. Precious tried to keep a safe distance from the bus stop. She looked up and down the road. Precious जो थी वो बस स्टॉप से सेफ डिस्टेंस में दूर थोड़ी खड़ी थी और वो इधर उधर सड़क के चारों तरफ देख रही थी. Empty except for a goat. खाली, सिर्फ एक बकरी के अलावा कुछ नहीं था. No one came to wait with her to protect her if the bus stop should turn nasty. कोई उसके साथ वहाँ पे इंतजार नहीं कर रहा था कि अगर कोई बुरा होता है कुछ बस स्टॉप पे तो उससे उसे बचा सके. She had to wait alone. वो वहाँ अकेले वेट कर रही थी. The bus stop was a baobab tree. बस स्टॉप क्या था? एक baobab tree थी, एक बहुत बड़ा ट्री with a swollen lumpy trunk, जिसकी बहुत बड़ी ट्रंक थी. It was hollow inside और वो अंदर से खाली थी. It made a great bus stop. उसने बहुत अच्छा बस स्टॉप बना रखा था. 6 or 7 people could take shelter inside it from the sun. सन से जो थी वो शेल्टर ले सकते थे 6 से 7 लोग उसमें. But nothing would make Precious take shelter inside the trunk of that old baobab tree. लेकिन कुछ Precious ने क्या किया, उसमें वहाँ कोई शेल्टर नहीं लिया उससे. When she was very small, Capito had said that tree is a witch tree. जब वो छोटी थी तो कैपिटो ने उसे क्या कहा था कि ये एक डाइन पेड़ है. Look at her warty face, her long bony fingers. उसका चेहरा देखो और उसकी उंगलियां देखो. And it was true that if you started very hard at the trunk, you could see a face there. जब आप बहुत ध्यान से उसकी ट्रंक की तरफ देखोगे तो आपको उसमें चेहरा दिखेगा. It was a scowling face with a big hooked nose and the thin weepy twigs did look like finger or claws. एक गुस्से वाला चेहरा, hooked nose जो कर्व की तरह होती है थोड़ी टेढ़ी सी, और weepy twigs did look like ऐसे पतली पतली टहनियां सी जिसको उंगलियों और पंजों की तरह नजर आ रही थी. The baobab was 1000 years old. हजारों साल पुराना था ये पेड़. It was a kind of tree you could believe all sorts of things about. ये एक ऐसा पेड़ था जिसके बारे में कुछ भी कोई भी कैसे भी यकीन कर सकता था किसी भी बात को लेकर. But Precious was 10 years old now. अब Precious जो थी 10 साल की हो गई थी. She had responsibilities. उसको responsibilities मिल गई थी. And she tried not to believe the stories that Capito told her. लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि वो Capito की बातों पर यकीन ना करे. This was harder than it might seem, for Capito was a brilliant storyteller. ये बहुत कहने वाली बात है कि Capito जो था एक बहुत बढ़िया कहानीकार था. He loved telling scary stories. He liked to frighten you if he could. It made him feel good. उसे डरावनी कहानियां सुनाने का बहुत शौक था और उसे अच्छा लगता था जब कोई उसकी कहानियां सुनकर डरता था. Capito had told her, for instance, that there were spirits living in the thatch of their hut. They slid out at night to guzzle on the blood of sleeping children and grow fat. Capito ने उसे बताया था कि इसमें जो है आत्माएं रहती हैं इस झोपड़ी में और जो है रात को निकलती हैं और सोते हुए बच्चों का खून पी लेती हैं और मोटी हो जाती हैं. He had told her earlier that the walking dead prowled round their hut at night. They called woo woo for you to come and join them in their cold and lonely graves. उसने उसके बाद बताया कि जो मरी हुई आत्माएं हैं वो चलती हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं रात को और वो करके आवाज निकालती हैं ताकि हम उसको ज्वाइन करें ये ठंडी और अकेली कब्रों में.
प्रेशियस डिड नॉट बिलीव एनी ऑफ दैट स्टफ मोर, लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं करती थी प्रेशियस। बट स्टूपिडली शी कुड नॉट हेल्प फीलिंग दैट द बस स्टॉप वाज अ विच, लेकिन वो खुद की मदद भी नहीं कर पा रही थी। इसके अंदर एक भावना आ रही थी कि हो सकता है कि बस स्टॉप जो है एक विच हो। What's wrong with you, precious? She scolded herself. वो खुद को ही स्कोल्ड करने लगी कि क्या कर रही हो, क्या गलत कर रही हो। As she waited for the bus to town, you are grown up now. अब तुम बड़ी हो गई हो। And scared out of your wits by bus stop, shame on you. और तुम इन बातों पर यकीन करके इनसे डर रही हो। She held the grass basket over her head like an umbrella to shade herself from the sun. उसने क्या किया, ग्रास बास्केट को अपने सिर के ऊपर ऐसे ले लिया जैसे छतरी होती है ताकि उसे छाया मिल सके। She looked up and down the road in both directions. दोनों तरफ देख रही है। Empty, खाली। Precious shivered, अब वो डरने लगी। She couldn't help recalling Capito stories about the mystery, क्योंकि उसको बार बार कैपिटो की स्टोरी जो थी वो याद आ रही थी। That place where you wait, Capito had said for the bus inside the tree, that is the witch valley. तो कैपिटो ने उसे कहा था कि जिस जगह पे तुम वेट कर रही हो वहीं पर उसके पेड़ के अंदर जो है वो विच की वैली है, उसका जो डायन है उसका पेट है। इट इज ओके व्हेन ग्रोन अप्स वेट देयर, जो बड़े हो जाते हैं वो वहाँ वेट कर सकते हैं। बट व्हेन चिल्ड्रन वेट फॉर द बस ऑल ऑन देयर ओन, द विच वैली बिंग्स टू रंबल। जैसे ही बच्चा कोई वहाँ पे वेट करता है अकेले तो वो क्या है, उसकी जो वैली है वो हिलने लगती है। दैट मीन्स शी इज हंग्री, जिसका मतलब है कि वो भूखी है। And then zip, just like zipping up your clothes, the witch tree closes up with the child inside it. जैसे जिप होती है कपड़ों की, उसी तरह विच क्या करती है, विच ट्री बच्चे को अंदर लेके उसको जिप को बंद कर देती है। The child may shout and scream, अब बच्चा अंदर चीखने और चिल्लाने लगता है। No one will hear, कोई नहीं सुनता। And after some time the witch tree opens up again. और जो उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, विच ट्री उसको खोल देती है। बट वेयर इज द चाइल्ड, अब बच्चा कहाँ है। द चाइल्ड इज नाउ वेयर टू बी सीन, द बस स्टॉप इज एम्प्टी, लेकिन अब चाइल्ड जो है कहीं नहीं है, बस स्टॉप जो है खाली है। एंड प्रेशियस हैड सेड वेयर इज द चाइल्ड इवन दो शी ऑलरेडी न्यू द आंसर। अब प्रेशियस पूछ रही है कि बच्चा कहाँ है, बल्कि वो जानती है आंसर क्या होगा। द विच ट्री हैज ईटन हर, ऑफ कोर्स कैपिटो आंसर, कैपिटो कहता है विच ट्री जो है उसे खा जाता है। इवन हर बोन्स, हड्डियों को भी। बट द विच डज नॉट ईट देम ऑल, मगर विच जो है सबको नहीं खाती है। इफ हर बेली इज फुल शी कीप्स अ चाइल्ड अंटिल शी इज हंग्री, जब उसका पेट भर जाता है तो वो बच्चे को अपने पास रख लेती है जब तक उसको दोबारा भूख ना लगे। डू यू सी द बम्स ऑन द ट्रंक ऑफ द विच ट्री, क्या तुमने बम्स देखे हैं विच ट्री में जो बने हुए हैं। प्रेशियस सो देम, प्रेशियस देखती है। दैट इज द विच लार्डर, कैपिटो हैड सेड, कैपिटो ने कहा कि ये बीच का लार्डर है जहाँ पे खाने को जो है स्टोर करके रखती है वो। पुट योर ईयर क्लोज, यू विल हियर द चाइल्ड इनसाइड कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, तुम अपने कान उसके पास लेकर जाओ, तुम्हें बच्चे की आवाज सुनाई देगी जो मदद के लिए पुकार रहा है। डोंट बी सिली, प्रेशियस हैड सेड, यू आर ओनली ट्राइंग टू फ्राइटन मी, देयर इज नो चाइल्ड इन देयर। वो कहते हैं मुझे पागल मत बनाओ, प्रेशियस कहती है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, कोई बच्चा नहीं है अंदर। She had put her ear against the witch tree largest bump to show she was not scared. अब वो अपने कान उसके पास ले गई ये दिखाने के लिए कि वो नहीं डर रही है। But then she leapt back in horror, लेकिन तभी वो एकदम डर के मारे पीछे हटी। She had heard the child, उसने बच्ची की आवाज सुनी। A tiny piping voice inside the trunk, ऐसा लग रहा था बहुत ही पतली सी एक हल्की सी आवाज जो है उसके अंदर से आ रही है। See, I told you, Capito had said. Capito ने कहा देखा मैंने कहा था ना तुम्हें। You remember that small child who went missing from the next village? तुम्हें याद है जो अगली जो गाँव है वहाँ से एक बच्चा जो था गायब हो गया था। But everybody says a leopard took him or a hyena. सबको लगता है कोई लेपर्ड या हाइना उसे ले गया होगा। They don't know anything, Capito had said. उन्हें कुछ नहीं पता। That child was probably waiting at this bus stop on his own. वो अकेले ही इस बस स्टॉप पे जो था इंतजार कर रहा होगा। That poor child is probably inside that lump on the witch tree. It is his voice you are hearing now. What did he say? अब वो जो बच्चा है वो जरूर इसके अंदर चला गया होगा, उसी की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। क्या कह रहा था? I don't know, said Precious miserably. अब वो दुखी बन से कहने लगी कि मुझे नहीं पता। I bet he said help me, said Capito. Capito कहता मैं शर्त लगाता हूँ वो जरूर मदद के लिए पुकार रहा होगा। But nobody can help me, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तब witch tree has got him, witch tree ने उसको अपने अंदर ले लिया है। So that is why Precious
ऑन दैट सैटरडे मॉर्निंग वॉज कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द बस स्टॉप। इसीलिए प्रेशियस ने उस दिन शनिवार की सुबह पेड़ से जो बस स्टॉप है उससे एक अलग सी दूरी बना के रखी हुई थी। बट देन शी हर्ड समथिंग, लेकिन उसे कुछ सुनाई दिया। इट मेड हर ब्लड टर्न आइसी कोल्ड इवन इन दैट फायर सन। उस भरी गर्मी में भी उसका खून जैसे ठंडा पड़ गया था। टैप 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 टैप। द साउंड वॉज कमिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट बम्प ऑन द ट्री। जो ट्री के जो बड़ा सा बम्प था उसमें से आवाज आ रही थी। द वन वेयर कैपिटो सेट द पुअर लॉस्ट चाइल्ड वॉज ट्रैप्ड, ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप। जहाँ कैपिटो ने कहा था कि खोया हुआ बच्चा जो है यहाँ फंस गया है, जरूर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होगा। टैप टैप अ होल अपीयर्ड इन द ट्रंक। ए कोल्ड प्रेशियस टेरिफाइड। टैप टैप दोबारा आवाज आने लगी उस ट्रंक में से और एक बड़ा सा छेद बन गया और तभी प्रेशियस चीखी। इफ शी हैडंट हैड अ बस टू कैच शी वुड हैव रन अवे। अगर उसे जल्दी से बस नहीं मिली तो वो यहाँ से भाग जाएगी। द होल गॉट लार्जर। अब वो जो छेद था, होल था, वो बहुत बड़ा हो गया था। Soon a finger would poke through or a hand, then the head of the poor lost child would follow. ऐसा लग रहा था जैसे एक उंगली जो है इसको चिढ़ा रही है, एक हाथ निकला और उसके बाद खोए हुए बच्चे का सिर बाहर आया। But none of these things happened. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। Squeezing through the hole in the which tree came a tiny rumpled baby bird. वहां से क्या, एक बर्ड का, एक पक्षी का एक छोटा सा बेबी जो है वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। इट फ्लॉप्ड ऑन टू द नियरेस्ट ब्रांच। और वो जाके एक बड़े पास की टहनी में जाके बैठ गया था। प्रेशियस फॉरगॉट हाउ स्केयर्ड शी वाज। अब प्रेशियस भूल गई कि वो कितना डरी हुई थी। शी फॉरगेट विद द विच ट्री माइट जिप हर अप इनसाइड एंड ईट हर। वो ये भी भूल गई थी कि उसमें कोई जिप है, उसको अंदर ले लेते हैं और खा लेते हैं। शी केम अप क्लोजर। वो पास में आई। शी पुट हर आई अगेंस्ट द होल। उसने होल के पास अपनी आंख लेकर आई। कैपिटो, शी ग्रीड टू हर सेल्फ, यू आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फ्लायर। अब वो हंसते हुए क्या बोलने लगी, कैपिटो तुम इस दुनिया के सबसे झूठे इंसान हो। फॉर इनसाइड द विच ट्री वॉज नॉट अ पुअर लॉस्ट चाइल्ड बट अ नेक्स्ट ऑफ हॉर्नबिल चिक्स। उसके अंदर, विच ट्री के अंदर क्या था, कोई खोया हुआ बच्चा नहीं था बल्कि हॉर्नबिल चिक्स का घोंसला था। द मदर बर्ड हैड सील्ड देम इन विद मड टू कीप देम सेफ फ्रॉम स्नेक्स एंड ईगल्स। स्नेक्स और ईगल से बचाने के लिए मदर बर्ड ने क्या किया था, उसको सील कर दिया था मिट्टी से। बट नाउ दे हैड हैस्ट। लेकिन अब वो अंडों से बाहर आ गई थी। एंड दे वर ब्रेकिंग आउट वन बाय वन। और धीरे धीरे वो एक एक करके बाहर आने लगे। द मदर बर्ड वॉज नाउ फीडिंग द चिक्स विच हैड हैस्ट। और जो जो अंडों से बाहर आ गए थे उन्हें मदर बर्ड जो थी खाना खिला रही थी, फीड करा रही थी। टैप 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 टैप। अनदर चिक केम रम्बलिंग आउट। अब इसी तरीके से एक दूसरा चिक भी बाहर आ गया। प्रेशियस लव, वो हंसने लगी। आई नेवर रियली थॉट, शी टोल्ड हरसेल्फ, दैट द बस स्टॉप वुड इट मी। क्या मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी कि बस स्टॉप जो है मुझे खा जाएगा। ओनली समवन विद अ हेड एज एम्प्टी एज हिज बास्केट वुड थिंक दैट। जिसका दिमाग जो है, सिर जो है इस बास्केट की तरह खाली होगा, वही ये सब सोचेगा। प्रेशियस सेट ऑन द बस। कसावा बीन्स राइस, शी सेट, सो शी डिडंट फॉरगेट। अब प्रेशियस जो थी बस में बैठ गई और फिर से वो रिपीट कर रही है कि जो जो से सामान लेकर आना है ताकि उसे वो भूले ना। देन शी थॉट अबाउट द न्यू बेबी हर मदर वॉज गोइंग टू हैव। अब वो इस बारे में सोची थी कि जो उसकी मदर जो न्यू बेबी लेके आने वाली है। मे बी इट वुड हैव अराइव्ड बाय द टाइम शी गॉट होम। कि जैसे वो घर पहुंचेगी हो सकता है बेबी भी आ जाए। वुड प्रेशियस टेल हर न्यू ब्रदर और सिस्टर स्केरी स्टोरीज अबाउट द चाइल्ड ईटिंग बस स्टॉप। क्या प्रेशियस जो थी अपने नए भाई बहन को वो कहानियां सुनाएगी डरावनी की, कैसे बस स्टॉप जो है बच्चे खा जाता है। स्टोरीज लाइक द वन कैपिटो होल्ड हर। ऑफ कोर्स शी वुड। जैसे कैपिटो ने सुनाई थी कहानियां, वो भी सुनाएगी जरूर। फॉर इट वुड बी अ ग्रेट शेम वुडंट इट टू वेस्ट अ गुड स्टोरी। ये एक बड़े शर्म की बात नहीं है कि इतनी अच्छी कहानी को बर्बाद करनी है। आशा है आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।